सो आतापर्यंत आपण जे जे कन्सेप्ट कव्हर केले ते बघूया. ठीक आहे. अकॉर्डिंग आणि अलॉंग विथ दॅट ठीक आहे थोडे जे कन्सेप्ट जे आपल्याला कळायला पाहिजे. ठीक आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल अबाउट ॲटॉमिक वेट आणि ॲटॉमिक मास. ठीक आहे. राईट. आपण हा कन्सेप्ट लास्ट टाइम घेतला नव्हता. ठीक आहे. अँड देन टुडे विल स्टार्ट विथ द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक आहे. सो टुडेज part we will be focusing on entirely about this points. ठीक आहे की काय काय आपल्याला कव्हर करायचे. ठीक आहे. राईट. अँड सेकंड थिंग व्हॉट विल बी द स्कोप. ठीक आहे. सो इन टुडेज शेड्यूल विल लर्न की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ॲटॉमिक मास अँड द ॲटॉमिक वेट. ठीक आहे. सेकंड थिंग इफ द टाइम परमिट्स we will go to find out how to calculate the molecular formula, how to determine the molecular formula using the traditional methods. ठीक है. म्हणजे empirical formula mass and then from empirical formula mass we will go for the molecular formula. ठीक है. So until now ठीक है for this some basic concept ठीक है. So now for this part some basic concepts of chemistry. ठीक है. The first thing ठीक है we have to understand what are the ठीक है types. ठीक है. or you can say the nature of chemistry. ठीक है. So basically we are knowing about the दोनोंच माहिती होतं आपल्याला. एक organic and the second one was inorganic. ठीक है. But the actual chemistry is divided into these 5 parts. ठीक है. Physical, inorganic, organic, analytical and biochemistry. ठीक है. Now आपला chapter number 1 जो आहे that is about some basic concept of chemistry. ठीक है. Chapter number 2 is about introduction to analytical techniques. ठीक है. Chapter number 3 is about some basic analytical techniques. So these two topics are dedicated to analytical chemistry. Chapter number 1 is about physical chemistry. Physical chemistry म्हणजे काय? It lets us understand some laws or some underlying factors which governs the concept of chemistry. For example, आता carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. ठीक है. Methane reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. ठीक है. So which laws govern this reaction? ठीक है. हे जो सगळा concept आहे comes under the physical chemistry. ठीक है. The second thing in the physical part, ठीक है, you will be understanding about the most important thing that is units and its standards. ठीक है. आता units आपण ऐकलेलं होतं, आपल्याला meaning थोडंफार माहिती आहे, but we will be polishing it to such an extent की we will be exactly able to determine what is the difference between the unit and what is the difference between the standard. ठीक है. So this part we will be learning. So organic chemistry deals with the chemistry of carbon compounds. Clear cut. ठीक है. We should not be having any confusion. ठीक है. जी carbon chemistry आहे, ठीक है, that is organic chemistry. So we'll be having chapter number that is about hydrocarbons. ठीक है. General organic chemistry. ठीक है. हे जे दोन टॉपिक्स आहेत these are totally dedicated to 11th standard for the organic part. ठीक है. Then inorganic chemistry is about the chemistry of all the representative elements. ठीक है. म्हणजे S block, P block. ठीक है. ह्यांचे जे एलिमेंट्स आहेत दिस ऑल कम्स अंडर द पार्ट ऑफ एन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री दिस इज अ न्यू कन्सेप्ट. ठीक है. बायोकेमिस्ट्री यू विल बी लर्निंग अबाउट द केमिस्ट्री अबाउट द बायोएक्टिव्स. ठीक है. द बायोएक्टिव्स म्हणजे काय? ठीक है. बायो म्हणजे काय? व्हाट यू कैन सजेस्ट व्हाट इज द बायो? बायोलॉजी. अच्छा, बायोलॉजी स्टडी ऑफ व्हाट? Study of organisms. More precise. Which organisms? Living organisms, right? Bio means life. See, after you are in 11th, ठीक है? After that you will be 12th, then graduation, post graduation, and like that. So when you reach your post graduation level, ठीक है, and beyond the post graduation, chemistry becomes chemical science. ठीक है? Biology will become life science. ठीक है. Biology that is botany and zoology together will become as a life science. ठीक है. Physics
ठीक है. Okay, what is about physics? Who knows what is the meaning of physics? Physics क्या है? What is mean physics? Study of what? Science about it. Who exactly knows the study of physics? Definition क्या है? Always ask here. ठीक है. Physics कभी have you ever tried to think on physics क्या है? Numerical formulas, ठीक है? Headache? Yes or no? What is physics? Physics is the study of nature. ठीक है? ठीक है. फिर वो biology क्या था? ठीक है? Biology is about life science. ठीक है? Right? Physics actually is the study of nature. ठीक है? The rules and the laws which governs the nature, like inertia, momentum. ठीक है? Now tell me how you describe a momentum. Momentum is the formula माहिती है. ठीक है? But someone asks you to describe a momentum. How you describe it? अच्छा, momentum ऐकला है शब्द होता ना टेन्सला होता. Right? What is momentum? तुम्हाला काय माहिती? What you know about momentum? हाँ. The pendulum of the clock. ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट आठवतो. अच्छा, पेंडुलम नसेल तर मोमेंटम कसं डिफाइन करायचं? सपोज इफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, ठीक है, राइट? ट्रेन ज्याला प्लॅटफॉर्म म्हणून सुटते, ठीक है? यू फील दैट द train is taking the speed at the same time the motors are running. ठीक है? Means you can feel that the motors are running fast, but the speed is not optimum. ठीक है? Once the train reaches the speed, you will feel that other motors का आवाज इतना ही है. ठीक है? You will not feel that efforts of a motor. ठीक है? And you will feel that train is moving with a good speed. ठीक है? Let's go in a reverse way. Train is approaching the platform. ठीक है? You feel that the motorman has applied the brakes. But still the train is not halting. ठीक है? Time लेते हैं. You feel like the brake लागता है. ठीक है? This is getting a time. So this phenomenon of anything which is stationary, ठीक है? When you have to convert it into a motion, the efforts required, ठीक है, to get the stationary body into a motion is momentum. मतलब त्याला काय म्हणतो? Mass of that object into velocity. M into V. Right ना? आधी काय मास जास्त है, वेलोसिटी काय है कमी है. ठीक है? रिवर्स. ठीक है? व्हेन द बॉडी इज इन अ मोशन, वेलोसिटी जास्त रहता. ठीक है? यू हैव टू कम इट डाउन टू अ मास एट टू हॉल्ट. ठीक है? सो वेलोसिटी इज हाई, यू विल फील इट इज मासलेस. ट्रेन पर से वाटते ना आपल्याला इट इज गोइंग वेटलेस. राइट? दिस इज मोमेंटम. ठीक है? एबिलिटी ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स स्टेट. ठीक है? आता तुम्ही बसला, पुढे सांगितलं जा पटकन स्टार्ट रनिंग. ठीक है? थोड़े एफर्ट्स घ्यावे लागते ना. यू हैव टू वॉर्म अप. इनिशियली यू हैव टू टेक अप द स्पीड. एकदा स्पीड आला देन यू विल फील वेटलेस. इजंट इट? ठीक है? दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मोमेंटम. ठीक है? सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. राइट ना? वेलोसिटी हाई असेल यू विल फील लाइक वेटलेस, एंड वेट हाई असेल यू विल फील लाइक यू आर हैविंग लो स्पीड. इजंट इट? Right? This is part of an part. So now let's come back to this part of an biochemistry. Biochemistry is about study of an such a chemistry which supports life. ठीक है? Right? 12th मध्ये एक चॅप्टर आहे बायोमॉलिक्युल्स. ठीक आहे? आता आपण बायो म्हणजे काय? लिव्हिंग. ठीक आहे? मग बायोमॉलिक्युल्स म्हणजे लिव्हिंग मॉलिक्युल्स. डू द मॉलिक्यूल लिव्स? राइट? वी डोंट नो. ठीक है? Actually this molecule doesn't live. आता what is life? As I said about bio, life म्हणजे काय? Suppose बायो कोणा म्हणायचं आहे? almost everyone. PCMB, PCB, PCB, right? What is meant by life? Yes, this big question to the future medical practitioner. बायो नहीं है, जीके का फायदा. Yes, what is life? How you define a life? What you know? Be feel free. ठीक है? थोड़े मार्क्स कट करने वाला हूँ. What do you know about this part about life? बेसिक काय म्हणतात? लाईफ अँड डेथ. फरक काय? हार्ट बीट्स. राईट ना? डॉक्टर काय म्हणतात? He checks. No more. Right? Then he checks with the stethoscope. ठीक है? Right? So we say that the heartbeats are not there, that means the person is dead. Have you heard the concept about brain dead?
What is brain dead? When the brain stops functioning. Brain stops functioning. ठीक है? Means in other words, comatose को मैंने तो पढ़ा उसका है कोमा मध्ये, right? Okay. In every medical department, this becomes a part of debate whether the person should be declared dead or brain dead. ठीक है? If the heart stops functioning, ठीक है, right? Then the doctor will ask the patient's, ठीक है, relative to donate his vital organs, brain, eyes, ठीक है, right? When the heart stops functioning, because he cannot live, because if this stops functioning, this one organ, ठीक है, right? Automatically brain वरती effect होणार, ठीक है, brain ला blood नाही भेटणार, brain will go in the death, ठीक है. All other organs will go into the death part, ठीक है. Eyes also they die, ठीक है, after the heart has stopped supplying the blood, ठीक है. On the contrary, brain dead person's heart is functioning well, ठीक है. This is everything will function well, but it will be in a vegetative state. काहीच बोलणार नाही, there will be no interaction, isn't it? Right? So this chemistry or the biochemistry is study about those molecules which supports the life. Now tell me what supports this beating of heart? कभी सोचा है? अच्छा, heart चे muscles कशापासून बनलेले असतात? Cardiac muscles. Cardiac muscles. Which what is the name for that muscles? Hyaline cardiac. ठीक है, right? These muscles are having a special type of tissue known as hyaline, ठीक है, cardiac muscles, right? Now these muscles they have got an ability to generate electric current, ठीक है, by which our heart twitches, ठीक है, right? It has got that motion, ठीक है, त्या motion वरती pumps the blood everywhere, ठीक है. Now it will be made up of some molecules. We are seeing out the muscles. Muscles ला आपण आतमध्ये काय भेटणार आपल्याला? Tissue, ठीक है. If you go inside the tissue, what you will get? You will get somewhere some molecules. और ते molecules काय? Have you ever thought of? नहीं, ठीक है. These molecules are nothing but proteins, ठीक है, right? So when we have, ठीक है, these molecules, no, ठीक है, when we about have the understanding about these molecules, ठीक है, these molecules are termed as an biomolecules, ठीक है. So biomolecules are basically of three main types. कुठचे कुठचे आहेत ते? ठीक है, it is carbohydrates, ठीक है, which gives us energy. Third is proteins, ठीक है, or also known as an amino acids, ठीक है, and the third one is fats, ज्याला आपण म्हणतो lipids, ठीक है. So these are three pillars of biochemistry, ठीक है. Is it clear? ठीक है. So next year in 12th, ठीक है, you will be learning about this chapter which will give you a complete idea about what is carbohydrate, proteins and fats, ठीक है. Now after this, ठीक है, we have already learned about this part of a matter, ठीक है. So matter is made up of two parts, pure substance and the mixture, ठीक है. We already learned this, ठीक है. Now when it is made up only one type of atom, it is elements, ठीक है. When it is made up more than one type of atom, it is compound, ठीक है, right? Homogeneous and heterogeneous, ठीक है. Now these are the type of further classification, ठीक है. Elements are further classified as metals, non-metals and metalloids, ठीक है. So आपल्या periodic table मध्ये total किती elements आहेत? 118, ठीक है. And out of that 118 elements, ठीक है, do you know how many are metals, non-metals and metalloids? No. Metals are 93, ठीक है, non-metals are around 10, ठीक है, and 7, ठीक है, you will get not 7, ठीक है. So it will be 17 are non-metals and 8 are the metalloids, ठीक है. So roughly you know what is meant by metal, ठीक है. But we already got this chapter in 10th standard. Non-metals, ठीक है, sulfur, iodine, carbon and phosphorus, ठीक है, right? Then
मेटलॉइड्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम. ठीक है. So out of the 8, 6 are mentioned over here. ठीक है. Then the next part is about an homogeneous and the heterogeneous mixture. ठीक है. So what is meant by homogeneous? So this is addition of a salt in water. ठीक है. जब अपन salt add to the water मध्ये, we almost get this clear solution. The salt is now dissolved completely. ठीक है. When we say about the heterogeneous, this is an oil in water. You can see that it is not getting dissolved. ठीक है. Right. So this is a part of a heterogeneous. Heterogeneous मध्ये पण ठीक है. In next year ठीक है. That is chapter number 2. आपण एक special chapter dedicated आहे for solutions. ठीक है. In that we will be learning about the concept of solid in liquid, liquid in liquid and gas in liquid. आता gas in liquid आपल्याला याच वर्षी आहे states of matter मध्ये. But in solid in liquid and liquid in liquid we will be learning about this part of a heterogeneous mixture. ठीक है. Is it clear? ठीक है. Now let's move for the next part. ठीक है. So we have already seen this. Now what is about the properties of matter? ठीक है. मॅटर चे मेन बेसिक दोन प्रॉपर्टीज आहेत. ठीक आहे. वन इज फिजिकल अँड केमिकल. सो व्हॉट इज मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज विच यू नो? फिजिकल प्रॉपर्टीज काय काय असते? नोटबुक मध्ये नाही भेटत. येस. व्हॉट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? 10 मध्ये झालाय ना? येस. सो व्हॉट यू नो अबाउट दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज? Mass, weight. मास, वेट, अजून Structure. structure won't come exactly. Color, order, melting point, boiling point, density are termed as a physical properties. ठीक है. Then comes the chemical properties. So what can be chemical properties? So which undergo the chemical change. ठीक है. So acidic, basic, ठीक है, neutral in nature. This all comes under the chemical properties. So this is one of the example of an chemical properties. Now what is this? ठीक है. हाँ, कहता है क्या है? हाँ, burning of what? हाँ है Bunsen burner. ठीक है. What is burning? A bright burn क्या होता? हाँ, metal it is also used on ships. ठीक है. When the ship sink होत असते, ठीक है, the captain कडे हे असते गन असते. He fires it into the sky. ठीक है. To indicate that something is going down. SOS. ठीक है. What is that metal? पिक्चर मध्ये मी दाखवलंय, टायटॅनिक मध्ये पण दाखवलंय. हा, इट इज द मॅग्नेशियम रिबन which is being burned. ठीक है. It gives the brightest flame. मॅग्नेशियम म्हणजे काय? अल्कलाइन अर्थ. ॲटॉमिक नंबर किती? 12. ठीक है. So in this ठीक है रिएक्शन, ठीक है, that is about and chemical properties. क्या होता है? Magnesium is burning with oxygen. ठीक है, to form MgO. ठीक है. This is the reaction happening. Understood what is the chemical properties is? Got this? ठीक है. Just do one thing. ठीक है. याचे जे मेन पॉइंट्स आहेत ते लिहून ठेवा. ठीक है. Okay. I don't feel हे सगळे लक्षात राहतील. Right? आणि those were there. ठीक है. I think some points extra आहेत ना? ये ऑलरेडी लिहिलं आहे. हे वेगळं आहे ना? जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस. ठीक आहे. ह्याच्या आधीचे पॉइंट्स काढू का? ठीक आहे. ओके. आई जस्ट टेक द प्रीवियस पॉइंट. प्रीवियस स्लाइड. हे आहेत आपल्याकडे, राईट? ओके. मॅटर वरती आहे. ठीक आहे. दोज आर नॉट हॅविंग जस्ट मेक आउट दिस पॉइंट. Matter is made of two parts, pure substance and a mixture, element, compound, homogeneous and heterogeneous. ठीक है. तू लास्ट लेक्चर नव्हतं बघा. फर्स्ट लेक्चर आहे. You were there. So how you will define an element? Important part. ठीक है. ह्याच्यात आपले डेफिनेशन्स लपलेले आहेत. ठीक है. सपोज कोणी विचार हाउ यू डिफाइन एन एलिमेंट, कसं सांगणार? Contains only single type of atom. नहीं. ठीक है. मैंने ट्रिक बताया था. वो तो है, वो लास्ट में आएगा. ठीक है. सपोज इफ समवन आस्क यू और इफ द क्वेश्चन कम्स
define element. See, last lecture मी सांगितलं आधी पण सांगितलं if you are looking at the matter, ठीक है, matter is of two type, right? It is pure and impure, ठीक है. Pure is of two type, that is element and compound, ठीक है. मग आता एलिमेंटला कसं डिफाइन करायचं? Element is pure form of matter, ठीक है. First line should be this: element is pure form of matter. Then the second point, it is made up of only one type of atoms, ठीक है, right? Then you can put the additional point: it is made up of metal, non-metal and metalloids, ठीक है. More we are clear with our concept and definitions, our score will automatically rise up, ठीक है. कारण ओके ये बना आरो बना and make this arrow as well. ये definition चे arrows है, ठीक है. Now tell me how you will define the compound. Compound is a pure type of matter. Pure form of Pure matter, form of matter. ठीक है, made up of more than one type of atoms, ठीक है, of different elements combined in a fixed proportion by mass. ये आपण लास्ट लेक्चरला बघितले, ठीक है. For those who have came today, ठीक है, for them I am writing it over here, ठीक है. Example of a compound H2O. So hydrogen is to oxygen in what ratio? 2:16, right? Huh? ठीक है. So atoms combine in fixed proportions by mass, ठीक है, that is compound. Is it clear? ठीक है. Now how you will define this part about mixture? Define me mixture. Mixture is an impure form of matter. Correct. So mixture is an impure form of matter, ठीक है. It is further divided into two types. Yes, homogeneous and heterogeneous. ठीक है. सो होमोजेनियस एग्जांपल काय असेल? सॉल्ट इन वॉटर. हेटेरोजेनियस एग्जांपल काय असेल? यू कैन टेक ऑयल इन वॉटर और सैंड इन वॉटर, ठीक है. लास्ट लेक्चर गिवन सैंड इन वॉटर एज वेल, ठीक है. इज इट डन? No. कंपाउंड एरो कर आंसर. एलिमेंट, कंपाउंड आणि मिक्सचरचे डेफिनेशन आपलं कुठलेच झालं नाही, ठीक आहे, राईट. कारण की यू विल बी सरप्राइज्ड मेनी अ टाइम्स इवन द स्टुडंट्स हु आर इन द ग्रॅज्युएशन, म्हणजे आफ्टर ग्रॅज्युएशन जे करतात ते सुद्धा काही वेळा कन्फ्यूज होतात या बेसिक डेफिनेशन्स वरती. कारण की आपल्याला माहिती सगळं असतं, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट, ठीक आहे. अँड द क्रिटिकली लाइज एक्झॅक्टली ओव्हर देअर. हे जे आपले एंट्रन्स एक्झाम वगैरे जे आहे, दे आस्क अस द सेम थिंग, whether your concepts are crystal clear, ठीक आहे. आता जर कन्सेप्ट क्रिस्टल क्लिअर करायचे असतील तर आपल्याकडून आपण काय केलं पाहिजे? व्हॉट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू? वी शुड आस्क व्हाय, ठीक आहे, राइट. सो सपोज इफ योर सर इज टीचिंग ओवर हियर इंक्लूडिंग मी, ठीक आहे, द फर्स्ट थिंग शुड बी आस्किंग मी इज सर व्हाय, ठीक आहे, राइट. जपान मध्ये एक टर्म आहे, ठीक आहे, राइट. इफ एनीथिंग फेल्स, काही फेलियर झालं, ठीक आहे. आता आपल्याकडून कधी मार्क्स कमी येतात, ठीक आहे.
then the first step to do is you should ask why. ठीक है, कितनी बार विचारायचं why? You have to ask 5 times. ठीक है, why you got less marks? ठीक है, I didn't write the answer. Why you didn't write the answer? ठीक है, so second why आला. ठीक है, why you didn't write the answer? ठीक है, I have not studied. Why you didn't study? मला तो टॉपिक इंटरेस्टिंग नाही वाटला. ठीक है, right? Third why आला. Why you didn't study? ठीक है, why you didn't find the topic interesting? ठीक है, I didn't get the well examples. So fourth why आला. ठीक है, ठीक है, why didn't you get the good examples? ठीक है, maybe my source was not right. ठीक है, so fifth answer आला. ठीक है, why? Right? So your source was not right. You didn't get the good example. You didn't find it interesting. You didn't study, and you didn't score the marks. Right? 5 why मध्ये आपल्याला आपल्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सचे आन्सर येतात. ठीक है, सपोज समटाइम्स यू फील अरे केमिस्ट्री में बहुत बोर होता है. क्यों बोर होता है? Maybe I am not relating that topic to my day-to-day life. Getting my point? ठीक है, so all this concept lies in these 5 whys. ठीक है, so whenever you are facing any doubts, any difficulties, put any, not only in chemistry but in any subject or any part of your life, you should ask why. ठीक है, and that why you should ask to your peers or the teachers who are guiding you. ठीक है, is it clear? हाँ? Now let's go for the next. जाना ना? ठीक है, now properties of matter, physical and chemical. Make a note of this. ठीक है, for this chemical properties you give out this example. कलर क्या है? ये ऑर्डर, ऑर्डर म्हणजे स्मेल, स्मेल का दूसरा नाम है ऑर्डर. ठीक है, गुड. ये ऐसे कोई साइंटिफिक टर्म से आप पूछ सकते हो एनी टाइम. ठीक है, वो रिएक्शन लिखा. ठीक है, नाउ आई वांट टू आस्क वन थिंग. ठीक है, हाउ टू राइट अ रिएक्शन. हाउ टू राइट अ रिएक्शन. ठीक है, इसका से क्या होगा? आप लोगों को रिएक्टेंट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, राइट ना? ठीक है, एवरी रिएक्शन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक है, बट रिएक्शन लिखने के भी कुछ टाइप है. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन व्हिच आई हैव रिटन, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ एन थर्मोकेमिकल रिएक्शन. मतलब क्या? ठीक है, सपोज इफ आई रिमूव दिस पार्ट, ठीक है, राइट, दैट इज इफ आई राइट ओनली दिस, ट्वाइस Mg प्लस O2 इज ट्वाइस MgO. ठीक है, राइट. सो ये हो गया केमिकल रिएक्शन. ठीक है, नाउ in this chemical reaction, ठीक है,
You can also specify the part of the state of this substance. जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे कौन से स्टेट में है? इट इज ए सॉलिड स्टेट, ठीक है. ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है? हवा में है, गैस, ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एश, ठीक है. यहाँ पे गिरते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, राइट. इट फॉर्म्स एन वाइट कलर्ड एश, ठीक है. ये सॉलिड नहीं, गैस नहीं बनता, ठीक है, राइट. सो ये हो गया केमिकल रिएक्शन. बट जब इस केमिकल रिएक्शन में I mentioned that it is giving out heat, ठीक है, right? Then it becomes a thermochemical equation, ठीक है. मतलब आप मेंशन कर रहे हो कि इस रिएक्शन से हीट भी जा रहा है, ठीक है, बाहर. Getting my point? ठीक है. When you specify कि कितना जूल of heat is given out, that is the complete chemical thermochemical equation. So अगले साल एक चैप्टर है chemical thermodynamics, ठीक है. नाम ही वैसा है, chemical थर्मो यानी हीट, डायनामिक मतलब चेंज. ऐसे केमिकल रिएक्शन जिससे हीट चेंज हो रही है, ठीक है, राइट. उसमें दो टाइप के आते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सो का मतलब क्या होगा? हीट बाहर छोड़ेगा, ठीक है. जैसे कोयला के तरह पर आग लगाओ, ठीक है. कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज गिविंग आउट एन हीट, सो इट्स एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. सेम थिंग अपना घर का गैस मीथेन, ठीक है. वी लाइट इट आउट, it burns the oxygen to give out and heat be used for cooking. It is also a exothermic reaction, ठीक है. On the contrary आपण लिंबू सरबत बनवतो, ठीक आहे, राइट. मीठ घेतलं, NaCl, पाण्यात टाकलं, ठीक आहे. काय होणार? पाणी थंड होतं, ठीक आहे. You have got a fever suppose, ठीक आहे. You don't have an ice. डॉक्टर काय म्हणतात? घरी पॅरेंट म्हणतात give him sponge. स्पॉन्जिंग म्हणजे काय? ठीक आहे. एका भांड्यात पाणी घ्यायचं, you will add the salt in it, wet the water or towel and put it on your forehead, ठीक है. Why to add the salt? ठीक है. So that addition of a salt in the water lowers the temperature, ठीक है, and that low temperature is help out in removing out the heat from your body, ठीक है. Excessive temperature it can affect your tissues, right, internally. Okay, so therefore this is known as the concept of endothermic, ठीक है. आता आपल्या आजूबाजूला मासे विकतात, ठीक आहे. त्या मावशी जे असतात ते बर्फ घेऊन बसतात, बरोबर, आणि त्याच्यामध्ये मिठाची पिशवी असते. सो दे फर्स्ट ॲड द आईस ऑन द फिश अँड देन दे स्प्रिंकल द सॉल्ट, ठीक आहे. सॉल्ट विथ वॉटर लोअर्स द टेम्परेचर, द बर्फ वितळत नाही बराचसा. दॅट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. गेटिंग माय पॉइंट? सो लाइक दिस यू विल बी गेटिंग मेनी कॉन्सेप्ट्स ओवर योर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सी दिस पार्ट, प्रीवियस पार्ट is about properties of matter, physical and chemical. आता हे physical आणि chemical properties जे आहेत ते मेजर कसे करायच्या, ठीक आहे. and then comes the next part is measurement of the properties, ठीक आहे. now properties दोन टाइपचे असतात. one is quantitative, next असते qualitative. quantitative म्हणजे काय? which you can measure by the number, वजन, मास किती आहे. let's say this is matter, ठीक आहे. आता याची quantitative property काय असेल? या बॉटलचं वजन 1 kg आहे, ठीक आहे. so length, let's say this is almost 1 feet, ठीक है, राइट. नेक्स्ट एरिया, इट इज एक्वायर्ड सम एरिया, ठीक है. देन प्रेशर, इट इज होल्डिंग सम प्रेशर इनसाइड, ठीक है, राइट. किंवा इट इज हैविंग सम प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड, 1 एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है. वॉल्यूम, ठीक है. टाइम, ठीक है, किती वेळापासून इथे आहे हे, ठीक है, ऑलमोस्ट 20-25 मिनिट्स, ठीक है. सो दीज आर ऑल क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज. नाउ फॉर दिस सेम बॉटल what will be the qualitative properties? So it is said that the properties which cannot be measured in a number of the numerical system are the qualitative properties. So let's say how hard this is, ठीक है. आता स्टेट कुठचा आहे? आतला स्टेट लिक्विड आहे, ठीक है. getting it? Then its texture, ठीक है. आता इथे जो डस्टर आहे, ठीक है, right, this shiny silvery, these are the qualitative properties, ठीक है. order, smell, ठीक है, right, these are all qualitative properties which cannot be measured. Getting my point? So qualitative and qualitative properties, this both the properties now will require a standard to measure, ठीक है, right. So just write down this property, what is qualitative and quantitative.
ठीक आहे. ओके, दोन्ही प्रॉपर्टीज either it may be in quantitative or it will be in qualitative, it has to be measured using a standard. ठीक है, right? So what are standards will be saying in this? ठीक है, कुछ further slides. So the volume कसं measure करायचं? आहे मी आज घेतो. व्हॉल्यूम नॉर्मली आपण यूज काय करतो तर दूध तेल जेव्हा आपण घेतो वी यूज लिटर्स. ठीक आहे, बट लिटर इज नॉट एस आय स्टँडर्ड. ठीक आहे, आपला एस आय स्टँडर्ड आहे मीटर क्यूब. ठीक आहे, आता लिटर आणि मीटर क्यूबचं रिलेशन काय आहे ते आपण बघूया. ठीक आहे, ओके. बट जस्ट इन पार्ट ऑफ क्युरिओसिटी. ठीक आहे, आता हा जो ऑर्डर आहे स्मेल, ठीक आहे, तुम्हाला वाटतं ह्याच्यासाठी स्टँडर्ड काय असेल? स्मेलसाठी काय असेल? नाक कोणाचं? कधी विचार केलाय? घरी मस्त जेवण बनवलं आहे, ठीक आहे, आणि मम्मीला सांगितलं आपण हे स्टँडर्ड काय वाटत नाही, वास बरोबर येत नाही. ठीक आहे, काय वाटतं? मत खाऊ घर द्या राईट ना. व्हॉट इज द स्टँडर्ड फॉर द ऑर्डर? Like, have you ever went to an perfume shop? जिथे ते अत्तर बनवून विकतात. हां, आता एक माल इकडे दुसरा माल इकडे झाला का तुम्ही, राईट ना. सो व्हॉट इज द स्टँडर्ड फॉर द ऑर्डर? 5 स्टार हॉटेल्समध्ये वगैरे कधी गेलात? गेलात कधी? ताज, लीला, राईट. बरेच आहेत, मला जास्त नाही माहिती. ठीक आहे, ओके. इथे ते ज्यावेळेला सर्व करतं समोरचे आणून, ठीक आहे, दे मेक शुअर दॅट यू आर गेटिंग दॅट स्मेल अरोमा ॲज वेल. ठीक आहे, राईट. सो मेनी टाइम्स दे विल नॉट सर्व यू डायरेक्टली, दे विल प्रिपेअर द डिश इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो, अरेंजमेंट, सो दॅट यू गेट दॅट अरोमा फ्रेश. ठीक आहे, राईट. सो दिस ऑर्डर इज नॉर्मली हॅज गॉट वन स्टँडर्ड इन अ लेमॅन टर्म. आपली कॉफी बीन्स असतात ना, कॉफी बीन्स, ठीक आहे, म्हणजे बिया त्या कॉफीच्या, फिल्टर कॉफीमध्ये आपण क्रश करून वापरतो. ठीक आहे, दॅट कॉफी बीन्स आर ॲक्च्युली वन ऑफ द रिसेटिंग स्टँडर्ड्स फॉर अवर ओल्फॅक्टरी नेझल रोड्स. ठीक आहे, राईट. म्हणून ज्यावेळेला आपण कधी परफ्यूमचा टेस्ट हे करायचं असेल, स्मेल घ्यायचं असेल, बिटवीन द टू परफ्यूम्स यू शुड ऑलवेज स्मेल अ कॉफी बीन. ठीक आहे, ते टू रिसेट अँड देन नेक्स्ट परफ्यूमचा स्मेल घ्यायचा. ठीक आहे, आय जस्ट गिव्ह यू एन इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, नाव, ठीक आहे, these are the some of the standards. ठीक आहे, डेन्सिटी साठी एक स्टँडर्ड असतो. ठीक आहे, टेक्स्चर किती रफ आहे. ठीक आहे, एस्पेशली आपण जेव्हा स्टँड पेपर घ्यायला जातो, ठीक आहे, पॉलिश पेपर, ठीक आहे, त्याचे वेगवेगळे नंबर्स असतात. ठीक आहे, दॅट नंबरिंग सिस्टम हॅज गॉट स्टँडर्ड्स. व्हॉल्यूम विल बी लर्निंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट हॅज ऑल्सो गॉट अ स्टँडर्ड. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर्ड इन एम्पियर्स. ठीक आहे, देन मास, magnetism, ठीक है, स्पेलिंग ले चुकी है. Then the states of matter, what is solid, what is liquid, what is gas. ठीक है, diffusion. ठीक है, in thermodynamics you will be learning about diffusion केल्याने एखाद्या गॅसचं टेम्परेचर कसं कमी येतं. Now you will be thinking सर ये कौन सा मजाक है? आपल्या घरी जो फ्रीज आहे ना, it works on the same concept. ठीक है, sometimes you would have heard की फ्रीज चालू झालं की गॅस रिलीज झाल्याचा आवाज येतो. ठीक आहे, that gas is getting released and to release झालेला गॅस when it gets diffused temperature down करतात, that is known as cooling effect. ठीक आहे, and next is solubility, the third is transparency. The transparency साठी, ठीक आहे, if you go to an industry, वेगवेगळ्या रंगाचे ग्लास असतात. ठीक आहे, तो एक्झॅक्टली नो की आपलं सोल्युशन कुठच्या कलरचं झालंय. ठीक आहे, लेट्स से तुमचं सोल्युशन झालंय ब्ल्यू, तर ब्ल्यूचा कुठचा शेड आहे त्यासाठी 7 प्रकारचे ग्लास असणार. ती टेस्ट ट्यूब तसे शेड म्हणून फिरायची, याच्यात ती टेस्ट ट्यूब गायब होते, तो शेड मॅच झाला. ठीक आहे, दिस आर द स्टँडर्ड. ठीक आहे, नाउ द स्टँडर्ड्सचं हे डेफिनेशन आहे. ठीक आहे, when you measure something you are comparing it with some standard, the standard for it is reproducible and unchanging. ठीक आहे, मग तो जो स्टँडर्ड आपण वापरतो, ठीक आहे, that is always reproducible. ठीक आहे, and it will never change. Let's say 1 kg चा एक स्टँडर्ड आहे. ठीक आहे, you can reproduce it. ठीक आहे, तुमच्याकडे डाय असणार, काय कन्स्टिट्यूएंट मेटल्स पाहिजे त्याच्यामध्ये ते असणार. ठीक आहे, and it will never change. ठीक आहे, under given set of condition. ठीक आहे, so just write down this definition
for the part of an standard. ठीक है, आणि based on the standards this is the definition for the units. आपण units last lecture ला बघितले, right ना? What is units? the हाँ आता तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. हम बोले तो काय था, arbitrarily decided universally accepted. ठीक है, standards are called units. ठीक है, इथे वर्ड आला standards आणि units चा. Understood this? ठीक है, just write down this definition for the standards. ठीक है, and then come to the next part, that is units. Units चे definition तुम्ही कसे दिलेलं असेल नाही आहे, ठीक आहे, तो लिहून घ्या. Standards लिहा आधी. ही जी स्पेलिंग आहे आर्बिट्ररीली, ह्याचं मीनिंग फार महत्वाचं आहे. व्हॉट इज आर्बिट्ररीली? ठीक आहे, बोलायला पण कठीण आहे. आर्बिट्ररीली, ठीक आहे, आर्बिट्ररी म्हणजे व्हॉट इज व्हॉट बिफोर ऐकलंय? त्याचं मीनिंग काय आहे? इट इज ऑथोरिटिवली. ठीक है, ते म्हणाले सर एक वर्ड समजत नव्हतं तुम्ही दुसरा लिहा. ऑथॉरिटी, हम बोले सो कायदा, इट इज अंडर माय ऑथॉरिटी. ठीक है, आई एम सेइंग दैट दिस इज आर्बिट्ररी. आता ही ऑथॉरिटी कोणाची आहे? दिस ऑथॉरिटी इज ऑफ एसआई. ठीक है, एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल. ठीक है, they are the authority to design this units. Units definition एवढंच आहे बोर्ड मधला. ठीक है, the arbitrarily decided and universally accepted standards are called units. You can mention this. ठीक है, स्टँडर्ड साठी. ठीक है, आणि दोघांसाठी हे लागतंच. ठीक है, राइट. दिस विल लेट यू रिमेंबर की व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टँडर्ड्स. ठीक आहे, स्टँडर्डचं डेफिनेशन माहिती आहे आपल्याला, सगळं माहिती आहे, पण दोन्ही क्वालिटीसाठी आपल्याला स्टँडर्डची गरज आहे, क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह. Done? Can I move to the next? So now this is the example which I given last time. ठीक है, NASA आणि it's a Japanese term. ठीक है, right? So actually I have used this term in Japanese, but I investigated it. It is not about a Japanese, but it was this company by the name Lockheed Martin. हा शब्द हल्ली ऐकलाय का तुम्ही? Lockheed Martin. Have you recently traveled by the train, expressway? गावी वगैरे गेलात कुठे? हा, मेल ट्रेनने गेलोय. हा, एक गोष्ट ऑब्झर्व झाली असेल की आता जे नवीन कोचेस जे आहेत ते भरपूर एअरस्पेस आहेत आणि कसे म्हणजे शायनी न्यू आहेत, राईट ना. आधीचे कोचेस थोडेसे असे कंजेस्टेड होते. ठीक आहे, ओल्ड कोचेस वर मॅन्युफॅक्चर्ड इन इंडियन कोच फॅक्टरी ॲट मद्रास अँड कॅलकत्ता. ठीक आहे,
ती ICF मॅन्युफॅक्चर करायची. नवीन जे कोचेस आहे इट इज मेड बाय लॉकहीड मार्टिन, ही सेम कंपनी. ठीक आहे. नाउ व्हॉट डिड दिस कंपनी डू? ठीक आहे. दिस कंपनी मेड अ स्पेसक्राफ्ट. ठीक आहे. राइट. I hope I'm able to get. In 1999, disaster struck NASA's Mars Climate Orbiter mission. This spacecraft, designed to study Martian weather, burned up upon entering the planet's atmosphere. The culprit? A seemingly simple error: units. Lockheed Martin, the spacecraft builder, used imperial units, inches, pounds for thruster calculations, while NASA's systems used metric, meters, newtons. This mismatch went unnoticed. As the spacecraft traveled, thruster firings meant to adjust its course were based on incorrect calculations. This resulted in the spacecraft entering Mars's atmosphere too fast, causing it to burn up. This multi-million-dollar loss highlights the importance of using a single, standardized measurement system in complex space missions. NASA tightened protocols to prevent similar unit errors from jeopardizing future endeavors. Got this? ठीक है. So this was the major drawback. ठीक है. काही करोड़ों डॉलर्सचा लॉस होता. ठीक है. Why it was so? Because this concept about units, ठीक है, they are of three types. ठीक है. What are the three types of units? आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलो. ठीक है. First one is CGS. ठीक है. It is known as सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. ठीक है. दूसरी सिस्टम का है FPS. FPS का है फुट पाउंड सेकंड. ठीक है. एंड द थर्ड सिस्टम इज MKS. ठीक है. इट इज मीटर किलोग्राम सेकंड. ठीक है. सो लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, हैज यूज्ड दिस सिस्टम ऑफ फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, टू एक्चुअली बिल्ड अ स्पेसक्राफ्ट. ठीक है. त्यांनी बनवलं. ठीक आहे. आणि काय केलं? नासा हँडल केलं. Now NASA being a standard governing body, ठीक है, it converted that same values into meter, kilogram and second system. ठीक है. आता when we go for foot, suppose if something has to go and 1 feet, ठीक है, right, or 1 foot, ठीक है, by distance, when it converts into a meter, suppose if I write it down as in 1 meter, ठीक है, then this 1 meter will be actually around 2.5 feet. Getting my point? ठीक है. 2.5 foot, 12 inches. म्हणजे जिथे the Lockheed Martin said that a spacecraft should travel by 1 feet or 1 foot, ठीक है, right, at a speed, ठीक है, NASA converted it into a standard part to go by 1 meter. ठीक है. What was the result? प्रत्येक प्लॅनेटला एक ॲटमॉस्फिअर आहे. ठीक आहे. आता ज्यावेळेला ते यान कल्पना चावलाचं, ठीक आहे, when it entered the atmosphere, ठीक आहे, it got burned up. त्याला फॉल्टी टाइल सिस्टमचं एक कारण होतं. ठीक आहे. बट एव्हरी स्पेसक्राफ्ट when entering the atmosphere it should have some low speed. ठीक आहे. जर excessive speed असेल it will burn up in any atmosphere. Same thing happened. It went around 2.5 times faster than the speed which was required, and instead of landing safely it got burned. ठीक है. This is what the units mean. ठीक है. Right. So today what we are using is a modified version of an MKS. ठीक है. And these units are termed as an SI units. So ज्यावेळेला आपण इंटरनॅशनल रिसर्च करतो कुठेही, ठीक है, then international research is always based on an SI units. ठीक है. So SI units is a modification of MKS. MKS stands for, ठीक है, that is meter किलोग्राम, ठीक है, सेकंड. Okay, just write down this about units. ठीक है. This is foot, pound, second. ठीक है. This is centimeter, ग्राम, second. ठीक है. Is it clear? Okay. ओके. सो हे जे SI युनिट्स आहेत, ठीक आहे, त्याची 7 क्वांटिटीज आहेत. वी हॅव सीन द लास्ट लेक्चर. ठीक आहे. व्हॉट आर द 7 क्वांटिटीज? कॅन यू रिकॉल? पहिलं काय होतं? लेंथ. ठीक आहे.
Then what was the second? Mass. ठीक है. Third, time. Fourth, Temperature. or we can say thermodynamic temperature. Right now, thermodynamic temperature. ठीक है. Fifth, electric current. Sixth, Luminous intensity. luminous intensity. Seven, amount of substance. ठीक है. So amount of substance साठी आज आपल्याला ठीक है we'll be learning more about it. ठीक है. Right now let's go for this. So we already learned about this part of units. ठीक है. Right. So it is the values which are written after the numbers in quantitative measurements. ठीक है. आपण एक क्लियर होईल की quantitative measurements मध्ये न्यूमरिकल व्हॅल्यूज असतात, नंबर्स असतात. ठीक है. Right. So units are basically applied to the quantitative measurements. ठीक है. Right. Now the first unit ठीक है is about this, that is thermodynamic temperature. ठीक है. It is Kelvin. ठीक है. हे ऐसा यूनिट आहे. ठीक है. ओके. आपण बघितलं की चार टाइपचे युनिट असतात. ठीक आहे. टेम्परेचर साठी लास्ट लेक्चर I have taken this. ठीक है. Right now. So Kelvin ठीक है. Then डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॅरेनहाइट आणि रॅडिकेन. ठीक है. डिग्री रॅडिकेन. ठीक है. So डिग्री रॅडिकेन is related with the Kelvin. ठीक है. Right. It is 9/5 degree Celsius plus 491.67. ठीक है. Right. That is Radican. ठीक है. So see what is about this absolute zero. Last time we सारा होता ना. As the temperature reaches a 0 Kelvin, ठीक है, the molecules, ठीक है, you can see that, ठीक है, आधे molecules सगळे spread out होते, ठीक है. So why that 273.15 minus 273.15 degree Celsius? Because at that temperature, ठीक है, okay, when it reaches a minus 273.15 degree Celsius, that is 0 Kelvin, ठीक है, हे सगळेचे सगळे molecules काय झाले? It came to a rest. ठीक है. म्हणजे जी kinetic activity होती molecules की that became zero. Therefore, and Kelvin scale is termed to be as an absolute zero or absolute scale. ठीक है. You can see that Kelvin मध्ये डिग्री नहीं है, सेल्सियस का डिग्री है, फ़ारेनहाइट का डिग्री है, and Radican का पण डिग्री है. Why it is so? ठीक है. Because degree indicates that these temperatures values can be negative. ठीक है. But the Kelvin can never be a negative. ठीक है. Because below 273.15 the kinetic activities becomes zero. ठीक है. Right. Kinetic activity becomes zero means actually in some of the cases they say that the volume becomes zero. ठीक है. आता volume zero म्हणजे काय? और teacher standing in front of you with zero volume means teacher है but गायब है. Isn't it? Yes होईल ना? If something has got zero value means what? It is not visible right now. So it is this temperature at 0, ठीक है, right, Kelvin, ठीक है, we get the thermodynamic properties given to a zero. Understood this? So 0 degree Celsius म्हणजे काय झालं? 0 Kelvin पासून up to 0, that is 273.15, ठीक है, Kelvin. Getting it? Right? So 0 degree Celsius is not a 0 Kelvin. 0 degree Celsius is 270.15 Kelvin. Is it clear? ठीक है. This formula is to convert degree Celsius into Fahrenheit. ठीक है. Right? And 9/5 degree Celsius plus Fahrenheit. I will request you to write down this part. ठीक है. Right? ये conversion खूप गरजेचं आहे.
that is 0 Kelvin. Done? Now, ठीक है, this is about the Kelvin scale, ठीक है, right? And ठीक है, these are the concept about the Fahrenheit scale, ठीक है. So about Fahrenheit scale, see degree Celsius and Fahrenheit, ठीक है, we already discussed this. Degree Celsius scale is dependent on what concept? Melting point and boiling point. Point of water, ठीक है. So in degree Celsius, the melting point of water is how much? 0 degree Celsius. Boiling point of water is how much? 100 degree Celsius. In Fahrenheit scale, the melting point of water is how much? 22 degree Fahrenheit. ठीक है, 32 degrees Fahrenheit, and the boiling point is 212 degrees Fahrenheit. ठीक है. Whereas a degree Ranikine, ठीक है, is a unit of absolute temperature similar to Kelvin but based on Fahrenheit scale. ठीक है. It defines as that 0 degree Ranikine equals to absolute zero, that is minus 273.15 degree Celsius or 0 Kelvin. ठीक है. And each degree Ranikine interval is the same size as the degree Fahrenheit. ठीक है. म्हणजे 0 केल्विन पासून स्टार्ट करायचं, ठीक आहे, but the increase in the multiples of Fahrenheit, ठीक आहे. In essence, it provides an absolute temperature scale using Fahrenheit degree size, make it particularly useful in thermodynamic calculation and engineering applications of interspace missions. ठीक आहे. आता अर्थ वरती temperature will rise in a order 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, but when you go to a Martian surface, ठीक है, in some cases the temperature at night, ठीक है, goes to minus 173 degrees Celsius. Even on the moon, रात्रि temperature minus 173, दूसरा temperature will be above 60 degrees Celsius. ठीक है. So normally one cannot survive on that. ठीक है. And instruments has to be calculated based on the Ranikine scale. ठीक है, right? So therefore it is this unit that is 9 by 5 degrees Celsius plus 491.67. ठीक है. हा 400 ते 500 degrees चा difference ठेवावा लागतो. Getting my point? To measure the scale at the interspace mission. Understood this? Right? So this is about the Ranikine. Okay. So just mention of this part. Somewhere something around in your entrance it may slip in. ठीक है. Right? So just write down the last para. ठीक है. Okay. So वो minus है. नहीं, ये dash है इसका. Again I'm repeating, ये syllabus में नहीं है. ठीक है. I'm just giving an extra info. ठीक है. Should I dictate it? जल्दी हो जाएगा. Write down. A degree Ranikine is a unit of absolute temperature. लिखा है इतना? ठीक है. Now, comma, similar to Kelvin, comma, but based on the Fahrenheit scale. But based on a Fahrenheit scale, it's defined such that 0 degree Ranikine equals absolute zero, full stop, and each degree Ranikine is equal to, and each degree Ranikine is equal to
interval of the same size as degree Fahrenheit, interval as the same size of degree Fahrenheit, ठीक है। Full stop. In essence, it provides an absolute temperature scale. In essence, it provides an absolute temperature scale using Fahrenheit degree size. Using Fahrenheit degree size. Using Fahrenheit degree size, comma, making it particularly useful. Making it particularly useful in thermodynamic calculations and engineering applications. ठीक है। Right, now let's go to the next parameter, ठीक है, that is this we have already done in the last lecture. We have solved how to convert a degree Celsius into a degree Fahrenheit, ठीक है, okay, right, then we'll go for the next, that is luminous intensity. I have told you in the last lecture that my slides are not working, so this will let you understand. You can see this image over here, okay? This is a classic example of a luminous intensity. So when you are going practically blind over here, this blind spot is actually high intense, okay, light, okay? Now this is measured in the part of a candela unit. So candela unit has came from the unit of, that is candle, okay? That's why it is candela, okay? So it is measured as the part of this conical path, okay, right? So just mention, okay, the SI unit of luminous intensity. One candela is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation. What is meant by monochromatic? Monochromatic, ये वर्ड पहले सुना है? मोनोक्रोमैटिक सुना होगा एक दो बार। मतलब क्या है उसका? मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। मोनो का वर्ड क्या है? सिंगल, ठीक है। सो व्हेन आई से अ मोनोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक मींस व्हाट? कलर, ठीक है। सो मोनोक्रोमैटिक मींस इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। अभी वेवलेंथ, ठीक है, का एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, इन द लाइट वी नो दैट लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। कौन से वेव्स होते हैं वो पता है? हाँ, सपोज दिस इज वन वेव, ठीक है। लाइट्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या? अच्छा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? बोला मत बोल। सन, ठीक है। तो सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। कितने टाइप के लाइट्स निकलते हैं सन से? हाँ, और भी होते हैं। सबसे हाई एनर्जी रेडिएशंस कौन से निकलते हैं सन से? कॉस्मिक रेज, ठीक है, राइट। कॉस्मिक रेज के बाद होता है गामा रेज, एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी रेज, यूवी के बाद छोटा सा पोर्शन होता है, ठीक है, दैट इज इन द रेंज ऑफ, ठीक है, सबसे छोटे होते हैं कॉस्मिक, ठीक है। कॉस्मिक के बाद होते हैं गामा, गामा के बाद है एक्स, ठीक है, एक्स के बाद है यूवी, यूवी के 3 रेडिएशन है, ठीक है, राइट। इट इज फार यूवी, ठीक है, मिड यूवी, ठीक है, एंड नियर यूवी, ठीक है, दैट इज यूवी ए, बी एंड सी, ठीक है। सी वाले तो ऊपर ही फिल्टर हो जाते हैं,
सी वाले नीचे आ गए तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। वी यूज यूवी सनस्क्रीन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवीए एंड यूवीबी रेज। यूवी के बाद आता है विजिबल, ठीक है, राइट। विजिबल के बाद आता है आईआर, ठीक है। आईआर के बाद आता है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो के बाद है रेडियो, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे मोबाइल चलते हैं और वॉकी टॉकीज, ठीक है, हैम रेडियोस, ठीक है। सो विजिबल रेज जो है इनका वेवलेंथ, ये जो यहां से डिस्टेंस है ना बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है दैट इज वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, राइट। और ये जो वेवलेंथ है फॉर द विजिबल रेज, ठीक है, इट इज इन द रेंज ऑफ, ठीक है, ये होता है 380 नैनोमीटर, ठीक है, से अराउंड 720 नैनोमीटर, ठीक है। सो 380 नैनोमीटर मतलब हमारा वॉलेट लाइट, 720 नैनोमीटर मतलब हमारा रेड लाइट, ठीक है। इसीलिए विजिबल के पहले कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और विजिबल के बाद क्या है, इंफ्रा रेड। समझ में आ गया, ठीक है। थोड़े जो एनिमल्स है जैसे स्नेक, कैट्स, दे कैन सी इन आईआर रेंज एज वेल, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। स्नेक जब बाइट करता है, ठीक है, इट लुक्स फॉर द हीट सोर्स, ठीक है, तो सब येलोइश ऐसा दिखता है, जो वार्म है दैट लुक्स येलोइश, कोल्ड है वो दिखता है उसको ब्लूइश, ठीक है, राइट। वो फिनोमेनन अलग है, विल नॉट गो डिटेल्स अबाउट दैट, बट ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, राइट, जब हम सिंगल वेवलेंथ देते हैं जैसे 380 नैनोमीटर तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है, दैट इज एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। सो luminous intensity जो है, ठीक है, it is the source that emits a single wavelength, ठीक है, of frequency 540 into 1012 hertz and there is radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian, ठीक है। ये आपको इन डिटेल अच्छे तरीके से फिजिक्स में आएगा, ठीक है। I've just expanded my boundary towards the position of explaining what is candela, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, राइट। मोनोक्रोमैटिक समझ में आ गया, ठीक है। एक और चीज आपको बता देता हूँ, व्हेन यू से अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये शायद आपको पता नहीं होगा, ईच लाइट वेव इज मेड अप ऑफ टू वेव्स, ठीक है। कौन से टू वेव्स है, वन इज, अगर एक को मान लो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है तो दूसरे को क्या होगी, दिस विल बी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। सो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब एट अ टाइम इसके पार्टिकल दो प्लेन में वाइब्रेट होते हैं, एक अगर ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो दूसरा ऐसे परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक है। अंडरस्टूड दिस, ठीक है, राइट। सो जब मैं इस पार्टिकल को अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, फ्रंट से, तो अगर मान लो ये मीन पोजीशन है और इसका सर्कमफरेंस ऑफ वाइब्रेशन है, तो एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इट विल गो डाउन एज वेल, ठीक है, राइट। सो अगर ये यहाँ पे जा रहा है, सो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन एज वेल। सो ये हो गया एक पार्टिकल का वाइब्रेशन ऊपर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सेकंड पार्टिकल ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये सिर्फ दो पार्टिकल हो गया, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं दिस इज माय नॉर्मल लाइट, ठीक है। नॉर्मल लाइट के जो वाइब्रेशंस होते हैं ये ऐसे होते हैं, राइट। सो हर एक लाइट जब डायरेक्शन में जाती है, अब यहाँ से लाइट आ रही है नीचे, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, इट इज कंबाइनिंग एट वन पॉइंट, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, अगेन इट विल कंबाइन एट द नेक्स्ट पॉइंट। सो इन पॉइंट्स को बोला जाता है नोड्स, ठीक है, वेयर वाइब्रेशंस इज डन, ठीक है, राइट। तो समझ में व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो नॉर्मल जो वेव्स होते हैं पानी के, ठीक है, वो ऊपर नीचे जाते हैं, दिस गोज एट अ टाइम इन टू डायरेक्शन, अंडरस्टूड दिस, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में और क्लियरली है, इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। सो जस्ट राइट डाउन दिस पार्ट, लुमिनस इंटेंसिटी लिखना कैंडेला, और सिर्फ ये पार्ट लिखना,
Done. Now let me ask you one honest question. ये फ्रीक्वेंसी किन किन लोगों को समझ में आ गया? नहीं ना? अब मैंने बोला था बाय पूछो, किसी ने पूछा भी नहीं, राइट? ठीक है? So let me answer you this concept. नहीं तो इसका मीनिंग आप बाय हार्ट करते रहोगे, टाइम जाएगा, ठीक है? मैं खाली वो नहीं करना। यहाँ से जाएंगे तो हम सब कुछ अंडरस्टैंड करके ही जाएंगे, ठीक है? सर बाय क्यों? ठीक है, इसका मीनिंग नहीं समझ रहा है, ठीक है? राइट? वी आर हियर विद दैट सोल पर्पस। लेट्स कम बैक टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है? ये समझ में आ गया, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आ गया, ठीक है? इसमें कुछ डाउट है? ओके, एक्सेप्ट हो रहा है ये कि एक वेव दो वाइब्रेशन से भी बन सकता है, ठीक है? नाउ इमेजिन करते हैं इस वेव के ऊपर एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है? दिस पॉइंट ले लिया, ठीक है? इस वेव के पास में मैंने पॉइंट ले लिया। अभी मैं आई वांट टू नो कि उस पॉइंट में से कितने वेव्स पास हो रहे हैं, ठीक है? राइट? सो द नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट पर second, or I would say per unit time, ठीक है? is known as frequency. न्यू बोलते हैं, ये v नहीं है, हाँ, दिस इज न्यू, ठीक है? ग्रीक वर्ड है न्यू, v की तरह होता है, ठीक है? सो एक यूनिट टाइम में, मतलब लेट्स से एक सेकेंड में उस पॉइंट में से कितने वेव्स पास हुए, ठीक है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अभी इसका जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, ठीक है? हर्ट्ज का मतलब है दैट इज साइकिल पर सेकेंड, ठीक है? इसको ऐसे भी लिखा जाता है एस इनवर्स, ठीक है? समझ में आ गया, ठीक है? अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 540 into 1012 हर्ट्ज, मतलब कितना हो गया? रफली इसको 500 ले लो और इसको 1000 ले लो, यानी 500,000, 5000 कितना 5 लाख। सो दैट मींस इसका जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है that is approximately 5 lakh cycles, ठीक है, पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, ठीक है? उतना हर्ट्ज है वो, ठीक है? उतने वेव्स पास हो रहे, कितने? ऑलमोस्ट मोर देन 5 lakhs, ठीक है? इतना स्पीड होता है लाइट का, ठीक है? और लाइट का स्पीड कितना होता है? दैट इज डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, ठीक है? इसको बोलते हैं c, ठीक है? बैठेंगे। सो इस स्पीड से वेव्स ट्रैवल करते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कॉमन टर्म कितना हो गया? 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में, गेटिंग इट? सो इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, सन से लेकर अर्थ के लिए आने कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स, राइट? सोचो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सो 3 × 8 is how much? 24 lakh kilometers, sun and earth का distance, isn't it? Right now, आ गया? Understood this? This is what the speed of light is, और ये frequency पे जो हम measure करते हैं, that is 1 candle. समझ में आ गया अभी? ठीक है? At least 80% समझ में आ गया? because इस concept के लिए आपके physics के कुछ concept clear होना जरूरी। Is it clear? ठीक है? Right? Now going for the next part, ठीक है? That is now the laws of chemical combination, ठीक है? राइट? अभी इसमें आपको टोटल है 5 लॉस, ठीक है? सिलेबस में यू हैव टू लर्न एडिशनल 1 फॉर द एंट्रेंस, ठीक है? कौन से 5 लॉज है? बुक पढ़ा। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है? सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है? नेक्स्ट लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है? ये है आपका 5th लॉ, ठीक है? आई थिंक इट वाज रिवर्स हो गया है, ठीक है? ट्राई टू चेक। डू वन थिंग, ठीक है? राइट? आपका इसमें 12:30 तक था ना? राइट? सो I'll
check it by ठीक है, ये जो लॉस का पार्ट है ना, ठीक है, आई टेक इट स्लाइटली आफ्टर दिस पार्ट, ठीक है, पहले एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। समहाउ मैं स्लाइड्स के अंदर वो जो 3 लॉज है, ठीक है, राइट, उसमें से पहला लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है, राइट, और एक थर्ड लॉ होगा, ठीक है, कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से है, ये 2 लॉज मिसिंग है मतलब इसमें, ठीक है। और कैन आई टेक यू टू द बेस वन, ठीक है, बिकॉज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से तो है, we'll do one thing, I take the 2 laws over here, ठीक है, ये already I have taken this part, that is law of, ठीक है, conservation of mass, ठीक है, किसने दिया था ये लॉ? Yes, for those who are present, हाँ, mass can neither be created nor be destroyed, हाँ, किसने दिया था? याद है? हाँ, The main question is क्या हम वो नाम ले पाएंगे? हाँ, it is a French name, क्या था? एंटोनी वॉन लेवॉइजर, राइट, मैंने इनके बारे में स्पेशलिटी भी बताया था। he was well skilled with, हाँ, इनका स्किल था, कौन सा स्किल था? अच्छा, how he died? वही बताया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, and only scientist to be killed by गैलेटोन, ठीक है, गैलेटोन पता है, मत सर्च करना गूगल पे, ठीक है, राइट। सो गैलेटोन इज सेक्शनिंग द हेड अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो बाय द टाइम ही वुड बी अवॉइडेड विद द डेथ पेनल्टी, द ऑर्डर केम, ही वाज किल्ड, ठीक है। सो ही वाज एन स्किल्ड पर्सन इन क्रिएटिंग द ग्लासवेयर्स, ठीक है, जो राउंड बॉटम फ्लास्क वगैरह होते हैं ना, it requires skill to blow the air, ठीक है, so he was a skilled person in that, ठीक है। एंटोनी वॉन लेवॉइजर, उनका यहाँ पे ये नहीं है। so according to the law of conservation of mass, ठीक है, the mass of reactant is always equal to the mass of product. It can be illustrated by this particular equation. Carbon reacts with oxygen to give carbon dioxide, ठीक है, so carbon solid reacts with a dioxygen gas to give the CO2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पे when I apply the mole concept, ठीक है, according to the mole concept, कितना ग्राम कार्बन है यहाँ पे? हाँ, those who are there, हाँ, 1 mole यानी कितना ग्राम कार्बन? अच्छा, mole, how many of you have got clear now? Clear है mole? हाँ, हुआ ना? 2-3 बार, हाँ, yes, आप थे? previous lecture में थे आप? नहीं थे। So what is mean by mole? Again, mole is an last topic. अभी अगर चालू करूँगा तो नहीं कर पाएंगे। So what you see over here, ठीक है, क्या दिख रहा है? एक कार्बन react with 1 dioxide to form 1 CO2. Does it mean that ये एक एटम रिएक्ट हो रहा है? The answer is no, ठीक है। मिनिमम कितना रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे? It is a mole, ठीक है, right? So 1 mole of carbon is reacting with 1 mole of dioxygen to form the 1 mole of CO2, ठीक है। अभी 1 मोल यानी कि बाय वेट कितना होता है? इट इज इट्स एटॉमिक वेट टेकन इन ग्राम, ठीक है। सो इसका जो एटॉमिक वेट है ए वैल्यू, ठीक है, कितना है कार्बन का? इट इज 12, राइट ना? 12 होता है ना? यस और नो? वो भी याद नहीं है, ठीक है। सो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12, ठीक है। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक नंबर है 8 into 2 16, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 2, सो 16 2 is 32, ठीक है। सो 12 ग्राम कार्बन
will react with 32 gram of dioxygen, ठीक है, to form how much? ये कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के 12 plus 32, it is 44, ठीक है. So if you sum this up over here, इसका भी वैल्यू आएगा 44 ग्राम, ठीक है, right? So this is what the law of conservation of mass is, ठीक है. So according to the law of conservation of mass, ठीक है, the amount of reactant which react together is equal to the amount of product form, ठीक है. इसको बोलते हैं law of conservation of mass. In the other words, it can be also written as, ठीक है, mass can neither be created nor be destroyed, ठीक है. This is the simplest word for the law of conservation of mass. Is it clear? ठीक है. दिया था एंटनी वॉन लवाइजर में in 18th century, ठीक है. 1751 के अराउंड ये लॉ आया था, ठीक है. Is it clear? ठीक है. नेक्स्ट है, ठीक है, जस्ट वन थिंग, ये हेडिंग देना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है. पहले हेडिंग दो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसमें फर्स्ट है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहले एग्जांपल लिखना, ठीक है, एंड देन राइट डाउन दिस डेफिनेशन. शायद आप में से किसी ने लिखा भी होगा. मैंने आज बताया ये स्टेट भी मेंशन करना, सॉलिड, गैस, गैस. Done. Okay. Now I will go for the next part, that is the second law. This is law of constant proportion. ठीक है. Now if you observe, ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया है, this is given by जोसेफ प्राउस, ठीक है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सबसे पहले लेट्स सी द एग्जांपल, इसको अंडरस्टैंड कैसे करें, ठीक है. सो जोसेफ प्राउस ने क्या किया कि ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन कंपाउंड्स, ठीक है, राइट, इन द प्योर फॉर्म. उन्होंने मिनरल्स के साथ वर्कआउट किया था, ठीक है. दैट वाज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है. बट मैं आपको सबसे इजीियर एग्जांपल देता हूं ऑफ द टुडेज डेट, ठीक है. सपोज आपने एक कंपाउंड लिया H2O, ठीक है. सो इट इज H2O, ठीक है. और इस कंपाउंड के आपने दो सोर्स लिए, ठीक है. वन सोर्स, ठीक है, आपने इसको नेचर में से लिया, ठीक है. लेट्स से आपने, ठीक है, आप समुद्र में गए,
ठीक है, समुद्र का पानी लिया, उसको डिस्टिल आउट किया, यू गॉट द प्योर वाटर। ठीक है, अभी फ्रॉम नेचर जो आपको वाटर मिला H2O, ठीक है, राइट, इस वाटर में आपने फाइंड आउट किया हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, तो आपको पता चला दैट द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर उसके अंदर है 11.11% हाइड्रोजन एंड 88.88% ऑक्सीजन। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे, तो आंसर इज बाय मास। ठीक है, अब यू नो टू फाइंड दिस आउट, ठीक है, H2O, ठीक है, में हाइड्रोजन कितना ग्राम होता है 2 ग्राम, ऑक्सीजन कितना ग्राम होता है 16 ग्राम। ठीक है, टोटल में कितने होते हैं 18 ग्राम। सो इफ यू डू लेट्स से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सो क्या आएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू 100। ठीक है, तो 200 डिवाइड बाय 18 आप करोगे, सो इट विल गेट 11.11%। ठीक है, सो ये आपको मिला नेचर में। अभी आपने दूसरा स्टेप क्या किया, आपने यू टुक द हाइड्रोजन गैस एंड यू टुक द ऑक्सीजन गैस और दोनों को रिएक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ द वाटर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन, ठीक है, राइट, उसको आपने चेक किया, द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है, एंड अगेन यू विल गेट द सेम अमाउंट, दिस 11.11% ऑफ हाइड्रोजन एंड 88.88% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको बढ़ा दिया उन्होंने लॉ। ठीक है, सो व्हाट ही सेड, ठीक है, इफ यू टेक एनी कंपाउंड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, it will have always the same percentage by mass of a constant elements irrespective of its origin। मतलब आप कोई भी कंपाउंड नेचर से लो या रिएक्शन से बनो या कहीं से भी लो, as long as you are taking a pure compound, उसका परसेंटेज में मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं। ठीक है, दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज। ठीक है, सो फॉर अ प्योर सब्सटेंस, for a pure substance, the percentage by mass of constituent elements is always constant irrespective of its source or method of origin। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। ठीक है, वहां पे आपको एग्जांपल कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का है, अगेन देयर यू विल गेट द सेम परसेंटेज, राइट, यू कैन गिव बाय दिस एग्जांपल। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कुछ जैसे 10। ठीक है, इसे लिख दो। You can put the table for this.
Done? Okay? Okay. Now the next law is the law of multiple proportion. ठीक है? मैं इसको यहीं पे फिट करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है? Right? So this law is given by the same person. ठीक है? That is John Dalton. ठीक है? So it is a law of multiple proportion. Okay. Now इस लॉ के लिए भी विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी एन एग्जांपल. ठीक है. सो एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. अबाउट सच एलिमेंट्स जो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे. ठीक है. दो एटम्स होंगे बट दे विल कंबाइन इन सच ए वे दैट दे आर फॉर्मिंग टू एंड मोर कंपाउंड्स. सो विल टेक एन एग्जांपल of hydrogen combining with oxygen. ठीक है. So एक चीज हमें पता है, when the hydrogen combines with oxygen the one compound it forms is H2O. ठीक है. हालांकि इसका एक और कंपाउंड बनता है that is an H2O2. ठीक है. ये H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. कहाँ पे यूज करते हैं? कभी यूज किया है? नहीं. ठीक है. इफ यू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द नेल्स. ठीक है. राइट. मेडिकल स्टोर में एक 10% सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है. अब एक ड्रॉप डालो. ठीक है. इट विल रिमूव ऑल द क्ले मटेरियल फ्रॉम द नेल्स. ठीक है. उसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, व्हेन टू एटम्स, ठीक है, कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ टू कंपाउंड्स. ठीक है. देन द मास ऑफ एन एटम, ठीक है, which combines with the fixed mass of the other, ठीक है, bears a simple whole number ratio. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इन द रेशियो ऑफ 2:16. ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इट इज 2:32. ठीक है. सो ये मास, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स्ड. Am I right? ठीक है. So the mass of an oxygen which combines with the fixed mass of the others, ठीक है, it bears a simple whole number ratio, that is 16:32. It is 1:2. Getting it? This is the law of multiple proportion. ठीक है. So इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? When two elements combine together to form two or more compounds, then mass of the element that combines with the fixed mass of other bears a simple whole number रेशियो. ठीक है. ये अगर एग्जांपल के साथ याद रखोगे, I will fix with an oxygen which combines the fixed mass of hydrogen is 2 and 2 gram. So oxygen जो मास में कंबाइन हो रहा है, it is the simple whole number ratio of 1:2. ठीक है. इसीलिए इसके लिए we can take one more example. Let's say हमने कंबाइन किया कार्बन with ऑक्सीजन. ठीक है. Now when they combine together, ठीक है,
आपको दो कंपाउंड मिलते हैं, वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ना? यस। सो यहाँ पे कार्बन का वेट कितना है, एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का? हाँ नहीं, अभी लिया था ना 12, ठीक है। सो 12 ग्राम कार्बन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है? 16, ठीक है। यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है? इट इज 32। सो ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 16:32। हाउ मच इट इज? इट इज 1:2, ठीक है, राइट? गेटिंग इट? सो एग्जाम में ये जो लॉज आपको लिखने हैं, ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर द एग्जांपल और उसके ऊपर आपको सेंटेंस बना के लिखना है, राइट? बाहर कहीं जरूरत है, अंडरस्टूड दिस, ठीक है? दिस इज व्हाट द लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। डाल्टन पता है ना कि कौन था? द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाला, हाँ, जॉन डाल्टन, हाँ, ठीक है। कब दिया था वो थ्योरी? आज से 225 साल पहले, ठीक है, टू बी प्रिसाइज 218 इयर्स बैक, 1808, ठीक है। इन्होंने बुक पब्लिश किया था, अ न्यू फिलोसॉफी इन केमिकल साइंस, ठीक है। उस बुक में द फर्स्ट टाइम स्पीक अबाउट द वर्ड एटोमियो, एटोमियो मतलब इंडिविजिबल, ठीक है। बट वाज इट द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक? नहीं, उसके पहले किन्होंने दिया था? इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कन्नड़, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था अणु और रेणु के बारे में, ठीक है, राइट? अणु मीन्स एटम, रेणु मीन्स पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है। सो अगर आप एशियन लिटरेचर में जाओगे, ठीक है, यू विल गेट ऑल द केमिस्ट्री ओवर देयर, ठीक है, राइट? सो दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज। इसे लिख दो। So, आज हम ना ही लर्न कर रहे हैं, बट वी आर मेकिंग अ 1 स्टेप प्रोग्रेस, ठीक है, ओके?
Done? Next law is an Gay-Lussac's law. ठीक है? Now according to the Gay-Lussac's law, ठीक है, this scientist has got his own, you can say, degrees, ठीक है, to measure the alcoholic beverages, ठीक है, internationally, ठीक है, right? Gay-Lussac's degrees are used to measure the amount of alcohol in an alcoholic beverage, ठीक है, शायद आपको you are still small, आपको उतना information नहीं होगा, but alcoholic beverages जो होते हैं वाइन, बियर, विस्कीज, ठीक है, राइट, उनके अंदर परसेंटेज अल्कोहल मेजर करने की एक डिग्री है इंटरनेशनली, ठीक है, दैट इज Gay-Lussac's डिग्री. द मेन पार्ट इज ही हैज वर्कड एक्सक्लूसिवली ऑन दिस अल्कोहलिक एंड गैसियस मिक्सचर, ठीक है, एंड विद दैट ही केम विद a Gay-Lussac's law of combining volume, ठीक है. There is one more scientist, ठीक है, who has got the contribution to this law, ठीक है. Now according to Gay-Lussac's law, ठीक है, of combining gases, ठीक है, by volume, it says that, ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे फर्स्ट, ठीक है. सपोज इफ देयर आर टू गैसेस, ठीक है, कंबाइनिंग विद ईच अदर, ठीक है, लेट्स से एंड नाइट्रोजन, ठीक है, इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है. सो व्हेनेवर दे डू, ठीक है, नाइट्रोजन गैस कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म एन अमोनिया, लेट्स से गैस, ठीक है. So whenever the two gases they react with each other, they do so in a whole number ratio by volume. Now for these gases, the ratios of volume is 1 volume of nitrogen will react with 3 volume of hydrogen to form and 2 volumes of ammonia, ठीक है. This is the Gay-Lussac's law, ठीक है. अब इसको वर्ड्स में कैसे डालेंगे, ठीक है. When two or more gases react together, they do so in a simplest whole number ratios by volume, ठीक है, राइट. इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है. लेट्स टेक हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ठीक है. हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है. रिएक्ट्स टू फॉर्म व्हाट, H2O. दो ये लिक्विड बनाता है, ठीक है, बट द टू वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन will react with a one volume of oxygen to form, let's say, ये gaseous नहीं है, so हम इसका वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, but it is doing so in the simplest whole number ratio of 2:1, ठीक है. अब इस वॉल्यूम को आप कोई भी यूनिट दे दो, you can take it as a liter, milliliter या मीटर क्यूब, ठीक है, right. So this will, it does so in the simplest whole number ratio, ठीक है. Is it clear? ठीक है, इसे लिख देना. सर ये फोर्थ लॉ है ना? ये हाँ फोर्थ हो. ये बहुत ही डरावना दिखने वाला साइंटिस्ट था, इटालियन, ठीक है, और उसका नाम भी उतना ही डरावना है, लोरेंजो रोमानो अमेलियो कार्लो अवोगाद्रो, ठीक है. इसके नाम में आपको 5 नाम मिलेंगे.
Done? Done? Okay. He is the same scientist जिन्होंने हमें दिया, that is अवोगाद्रो नंबर. ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू क्या है 6.022 × 10⁻23. ठीक है, इस नंबर का ऐसे कहा जाता है, इस नंबर का 90% काम जो है इट वाज डन बाय बर्जेलियस. ठीक है, बर्जेलियस कौन, जिन्होंने हमें रेडियो एक्टिविटी दी. ठीक है, मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी नहीं दी, मैरी क्यूरी ने रिसर्च किया रेडियो एक्टिविटी पे. रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बर्जेलियस. ये क्यों जरूरी है, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी से हमें पता चला कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड. ठीक है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कहाँ से पता चला, व्हेन वी स्टडी द रेडियो एक्टिविटी ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ठीक है, सो वो जो नंबर है उसका मैक्सिमम वर्क वाज डन बाय बर्जेलियस. The final conclusive work was done by Avogadro and then came the Avogadro number. But ये जो law है, this is not for the number, but this is for the gases. ठीक है? So what is an Avogadro's law? So Avogadro ने क्या किया? ठीक है? At constant temperature and pressure. ठीक है, ये इन्होंने कांस्टेंट कर दिया. ठीक है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, आज जो हम वर्ड यूज करते हैं ना मॉलिक्यूल्स, इसका इंपॉर्टेंस अवोगाद्रो ने डिसाइड किया था. ठीक है, ये काम काफी सालों तक ठीक है छुपा रहा, किसी को पता नहीं था. ठीक है, इन द ईयर 1860 ठीक है कैनिज़ारो ने इस काम को फिर से रिवाइव किया. कैनिज़ारो वही जिनके बारे में हम लर्न करेंगे इन अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, राइट, वहां पे एक कैनिज़ारोस रिएक्शन करके है फॉर अल्डिहाइड्स विदाउट द अल्फा हाइड्रोजन एटम. ठीक है, सो ही गेव आउट एम्फसाइज ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट दिस वर्क इज, बिकॉज अगर ये अवोगाद्रो नहीं बताया होता तो आज हमें पता ही नहीं चलता कि जो हमारे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है दे एग्जिस्ट नॉट एज एन एटम बट एज एन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. हम H2 कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं ना, सिंगल H लिखते हैं नहीं, O सिंगल O लिखते हैं नहीं, O2 N2. ठीक है, राइट, F2 Cl2. सो अगर हम नोबल गैसेस छोड़ेंगे, हेलियम नियॉन, हेलियम में He2 लिखते हैं क्या, नहीं, नियॉन सिंगल, आर्गॉन सिंगल. सो दिस गैसेस ठीक है जो पार्ट ऑफ नोबल गैसेस है, ऑल दिस गैसेस एग्जिस्ट एज एन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल वर्ड के ऊपर एम्फेसिस दिया अवोगाद्रो ने फर्स्ट टाइम. ठीक है, सो अगर आप सेम टेम्परेचर प्रेशर को अगर आप कोई गैस है जैसे 1 लीटर, ठीक है, उन्होंने कहा कि सब में यू विल गेट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट विल बी इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर. कितना 6.022 × 10⁻23. ठीक है, राइट, इसको लिख दो.
हुआ? ठीक है. Now the next is law of reciprocal proportion. ठीक है. Interestingly, ये सबसे पुराना लॉ है. ठीक है. It was in fact before the law of, you can say, constant proportion से भी पहले. ठीक है. Missed to write the name. इनका नाम है रिश्टर. ठीक है. RISCHTER. इसका टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं है. ठीक है. Now to understand this law of reciprocal proportion, you have to take the three element. ठीक है. एक होगा कार्बन. सर वेट है अभी का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अभी. ठीक है. We'll do one thing. ठीक है. इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. ठीक है. I missed. Okay. Sorry for that. Okay.